Okay, so we are now live. Hello, everyone. A very warm good evening. We are back with another episode of Voice in the Noise, where we bring to you stories and sessions about people having power to empower. Be the change you want to see in this world. महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि आप जो चेंज इस दुनिया में लाना चाहते हैं, आप वह चेंज खुद बन जाइए. So that is maybe the correct intro for our today's speaker. Today we have with us Mr. Rahul Goswami, co-founder and CEO of Laksh Jeevan Jagriti, an organization which aims to empower women and youth by providing education and skill training. A TEDx speaker shared his journey on about from domestic violence, a victim of domestic violence, to a social entrepreneur. Youth Speak Forum speaker, Mr. Goswami's work is widely recognized and appreciated in international forums too. He conducted trainings and workshops for Warm Heart Foundation, Thailand, guest speaker at the Let Women Speak Summit in New York, participated in Social Enterprise World Forum, Hong Kong. During his journey as a change maker, he received various awards and recognition for the amazing work he has done. TEDx Bold and Brilliant Speaker, Gurgaon. Make India Capable Fellow, Scotland India Impact Link Fellow, Young Social Entrepreneur Award. He also got featured in many media presence. The local Indian 92.7 Big FM Big Heroes, See the People, and The Week magazine. I want to welcome you, Mr. Goswami, for honoring us with your presence today, and really want to thank you on behalf of entire family of Mitti Ke Rang. Thank you, Anshika. Thank you, Mitti Ke Rang. You guys are doing amazing at the moment, and reaching with our voice to the people can create a difference in everywhere we are living and with all the communities. Thank you very much. Okay, so let me admit, sir, I'm very curious to know about your journey and your experiences till now. And regarding your experiences, there are quite a few, as we all can see. So the first question which rings my mind is, sir, how did this all started? The journey of being the change. Like today, सब बोलते हैं कि okay, be the change you want to make in this world. It all starts within you. Start with yourself, and all of that. But at the end of the day, reality checks, right? Reality check happens. So how did you actually start to pull this off, unlike others? Okay. So yes, Anshika, it was a really a roller coaster ride for me, and it was a journey altogether. The journey कभी खत्म नहीं हो रही है. It all started when I was a child, and as you shared that yes, I was a domestic violence victim, and I witnessed my mother's attempt of committing suicide twice. So while growing up, I was watching all this, observing all this, and something within me was saying that this is not acceptable to me. This is not a way of living. And I remember I used to say to myself when I was a child that we take a birth, we grow up, we go to the good schools, colleges, get married, have kids, and just get old and die someday. So I used to talk to myself at those times when I was a child itself that I don't want to live a life like that. Something within me was always asking me to do something different or the better for the world. So what happened that all this was bugging me, and like conditions at home also were something which was not acceptable to me. So I left my house at the age of 20. So अभी जीने के लिए कुछ तो करना ही है ना, तो मैंने स्टार्ट किया एज ए ट्यूशन टीचर. एंड मुझे कई सब्जेक्ट्स नहीं आते थे, लेकिन मैंने ओवर टाइम ये देखा कि जब मैं स्टूडेंट से बात करता था, इट्स यूज्ड टू स्पार्क समथिंग इन देम, and they used to pick up their books their own, and they used to realize the responsibility do not lie on the teacher, it lies on them. तो धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा किया कि एक मुकाम के पीक पर पहुंचकर मैंने उस मुकाम को छोड़ दिया और मैं दूसरी जगह पहुंच गया. आई वर्कड एज अ मार्केटिंग एजेंट एज वेल as my medical representative also, and I also worked with Airtel as a call center executive as well. तो क्या होता था कि जब मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ तो मैं मार्केटिंग मैनेजर बनने वाला हूँ, मैंने वहाँ से क्विट कर दिया. मैं कॉल सेंटर में हूँ, मैं टीम लीडर बनने वाला हूँ, वहाँ पे मैंने क्विट कर दिया. अब एज ए स्कूल में मैं टीचर था तो मैंने वहाँ पे मैं सीनियर पोस्ट पे आने वाला, मैंने वहाँ से क्विट कर दिया. सो एवरीथिंग यूज टू हैपन दिस वे ओनली. मैं देखता था ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं सेटल क्यों नहीं हो रहा हूँ. तो
there was a dream within me to get selected into IIM Ahmedabad, और मैं उसकी तैयारी भी करता था. तो what happened कि घर में कंडीशंस ऐसी थी मेरी अपनी कि मेरे को खुद कुछ करना है, फाइनेंसेस नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही ढंग से. तो वो सपना पीछे छूटता हुआ दिखा मुझे कि नहीं हो पाएगा. आई लैंडेड अप इन अ डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज, जो कि मुझे बताया था कि वो रेगुलर कॉलेज है. तो ये होता रहा. आई थॉट कि ये स्टक सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों हो रही है. बट वन डे आई डिसाइडेड दैट आई एक्सेप्ट ऑल द कार्ड्स गॉड इज गिविंग मी एंड आई विल प्रे थ्रू दीज कार्ड्स ओनली. मैं अब कोई नए कार्ड्स के पीछे नहीं भागूंगा. तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. मैं डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज के इंस्टीट्यूट में जाता था, छत पे जाता था, पढ़ता था. तो देयर वाज माय फ्रेंड हु केम टू मी, ही सेड वन डे कि इकोनॉमिक टाइम्स में ना राहुल एक एड आई है एंड दिस इज ऑफ IIM अहमदाबाद की एडवर्टीजमेंट है कि दे आर आस्किंग फॉर ए रिसर्च पेपर. उसने कहा वो करेगा. मैंने कहा हाँ करते हैं. एंड आई वाज नॉट इन द प्रेजेंट में मेरे को पता नहीं था कि मैं MBA फर्स्ट ईयर में हूँ और ये रिसर्च पेपर होता है PhDs का काम. तो अभी हमने कहा ठीक है करना शुरू करते हैं. आई रोट ए मेल टू IIM अहमदाबाद एंड फॉर्चुनेटली दे एक्सेप्टेड इट कि ठीक है वी विल एक्सेप्ट योर प्रेजेंटेशन जो आप देना चाहते हो रिसर्च पे, टू रिसर्च ऑन दैट. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं IIM अहमदाबाद में पहुंचा अपने ड्रीम कॉलेज में, मे बी एज अ रिसर्चर ही ओनली. चलो मैं स्टूडेंट नहीं था, ये रिग्रेट मुझे हमेशा होता रहा. तो during one of the conversation with one of the faculty at IIM Ahmedabad, who happened to be my first mentor in my life, I said, ma'am, I have a resentment that I am not a student of this college. तो उन्होंने कहा कि राहुल तुझे मालूम है एक बात बोलूं, जो इस कॉलेज को जिसने बनाया है ना, he was never been a student of this college. कुछ मुझे स्ट्राइक किया उस समय. And I came back home with a vision to create a structure, create a vision, create a mission like IIM, जहाँ पर मेरे को समझ आया कि एक सोच ही तो होती है. आप कहीं भी 4 टेबल और कुर्सी को बिछा कर आप बैठ जाओ, IIM तो वहाँ पे भी बन सकता है. तो विद दैट विजन मैं जब वापस आया तो इन माय सेकंड ईयर इटसेल्फ आई अप्लाइड फॉर ए मार्केटिंग फैकल्टी इन वन ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग कॉलेज इटसेल्फ. जहाँ पर मैं गया तो मुझे दिखा मेरे ही जैसे लोग हैं और वो स्टूडेंट मेरी तरह से ही ट्रैप्ड हैं किसी ना किसी सिचुएशन में. मुझे दिखा कि इन सब के पास टैलेंट है, बस शायद जो सफ़र मैं जी कर आया हूँ वो इन्होंने नहीं जिया है. और मैंने कैसे जिया था कि उसके बाद मैं जब वापस आया था तो मैंने अपने कॉलेज के खिलाफ मैंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया. और मैंने अपने आप को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एनरोल किया. तो वो जो अमाउंट बचा उससे मैं डिफरेंट IIMs में जाकर मैं रिसर्च पेपर्स पे काम करता था, वर्कशॉप्स अटेंड करता था. तो मैं डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक्चुअली वो पढ़ रहा था. तो जब मैं इस कॉलेज में आया, जब एज ए फैकल्टी आया मैं, तो मैंने वही किया इनके साथ जो मैंने किया था. तो क्या होता था कि जब स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करते थे तो उनको कुछ अलग दिखता था. जब वो IIMs और डिफरेंट कॉलेजेस में जाते थे तो एक गैप दिखता था उनको, और वापस आके उस गैप के ऊपर वो काम करते थे. तो धीरे धीरे वो ट्रेन होते गए. तो व्हाट हैपेंड वन डे, वी वेंट टू IIM अहमदाबाद एंड वहाँ पर इन्हीं ट्रेनीज ने, इनमें से 60 ट्रेनीज ने फर्स्ट प्राइज जीता. और इनके जो कंपटीशन में थे डिफरेंट कॉलेजेस के थे, डिफरेंट ONGC से भी थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी थे. सो व्हाट हैपेंड, जब हमने फर्स्ट प्राइज जीता तो हम वापस आए. तो हमने कहा अब करना क्या है, अब या तो प्राइज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें. लेकिन ऑल ऑफ देम शेयर्ड वन विजन कि सर एक काम करते हैं, व्हाई नॉट स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर ओन, जहाँ पे हमने अब तक कॉलेज लेवल पे जो किया है क्यों नहीं उसको हम ग्रास रूट लेवल पे करें. एंड दैट वाज द डे वी फाउंडेड लक्ष्य जीवन जागृति. वहाँ से जर्नी चलती रही हमारी. देन वी स्टार्टेड वन आफ्टर स्कूल सपोर्ट सेंटर. और मेरी लाइफ में जो था कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ था,
तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया अवसात माँ, जहाँ पे हम मदर्स को एजुकेट करना शुरू करा। हमने बेसिक लिटरेसी से IT स्किल्स देनी शुरू करी उन्हें, ताकि उनकी सेव हो घर में। एंड देन केम दैट टाइम, हम चल रहे थे आराम से, वी वर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली वेरियस लेवल्स। तब आया पेंडेमिक का टाइम, कोविड का। कोविड के टाइम पे हमको ये रियलाइज हुआ कि हमने कितना कर दिया है। इतना कि एक एक स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, एक एक मदर जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो सब सपोर्ट में आ गए हमारे रिलीफ वर्क में। उन्होंने किचन स्टार्ट कर दिया, हम वो खाना बांटने लग गए, और वी लैंडेड टू ए स्लम एरिया, जहाँ पे हमको दिखा कि आज पहली बार हमको रियलाइज हुआ कि अब हम किस लेवल पे आ गए हैं कि हमको यहाँ भी कम सर्व करना है। एंड राइट नाउ इस पेंडेमिक के दौरान भी हम वहाँ पर स्लम एरियाज के बच्चों को हम सोशल इमोशनल लर्निंग दे रहे हैं और रिलीफ वर्क भी कर रहे हैं। अब ये जर्नी कहाँ जाएगी पता नहीं। जी, आपकी बात सुन के सर, वो एक सेइंग है ना, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। वो जो कोट है वो आपकी बात सुन के याद आता है। और एक्चुअली एक वो बोलते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप वो डायरेक्शन ही चेंज नहीं करोगे, जो दूसरे डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो यू विल एंड अप हेडिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, राइट? सो दैट इज व्हाट मेक्स एक्सेप्शनल। सो सर, जब हमने जैसे हम पढ़ रहे थे, हमारे पहले भी हमने जो आपको बताया था कि हमको कॉल आया था लक्ष्य जीवन जागृति से। तो सर, हाउ डिड दिस आइडिया इंक्यूबेट, लाइक हाउ डिड यू मैनेज टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट, एंड why did you choose this name for your organization, like Laksh Jeevan Jagriti? So what was that idea behind that name of your organization? Throw some light on it, please. ओके, तो एक फनी इंसिडेंट है। हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, जी हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं। तो उस समय एक मूवी आई थी लक्ष्य, मेरे कॉलेज के टाइम पे, जी जी। जहाँ मैं अपनी लाइफ को बहुत डील कर रहा था। तो क्या हुआ कि वो सॉन्ग मैं बहुत रिपीट सुनता था, और बार बार, मतलब आप मॉर्निंग से लेकर रात तक, जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपनी सुबह अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, शाम रात को पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं उस समय हॉस्टल में रहता था, और एक टाइम आया, हॉस्टल वालों ने मुझसे ये कहा कि यार राहुल, या तो तू जा बाहर, या ये जो म्यूजिक बॉक्स है ये बाहर जा, बिकॉज पूरा टाइम एक ही ट्यून चलती है तेरी। तो वो वर्ड जो है लक्ष्य का, तो वो तो वहां से आया। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा जिंदगी में मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जिंदगी में लक्ष्य मैंने बनाया था कि आई एम जाना। पर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मुझे पहुंचाना है। मुझे किस जगह पे खड़ा होना है, मुझे वो देखना मैंने। तो मुझे मेरा लक्ष्य मिला, तो मुझे लगा कि आगे चलते हैं और देखते हैं कितनों को लक्ष्य चाहिए। फिर 7 लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको उनकी लाइफ में वो भी ऐसे स्टार्ट करा, उनको भी दिखा कि नहीं, लक्ष्य वो नहीं है कि प्रीमियम जॉब्स में जाना, लक्ष्य वो है कि प्रीमियम पहुंचाया। जब वो लक्ष्य समझ में आया, तो वो वर्ड हमारी जिंदगी में बस गया। फिर जीवन जागृति को जोड़ा, तो अवेकनिंग द एम ऑफ लाइफ, कि हम जी रहे हैं जिंदगी में, लेकिन वो एम कब दिखेगा हमको। उसकी अवेकनिंग जब होती है, वो तब होती है जब इंसान समझ पाता है कि आई एम लिविंग, आई एम नॉट लिविंग फॉर ए जॉब, मे बी आई एम लिविंग फॉर डिफरेंट थिंग। वो रात में हम सोते हैं, जब एकदम उठ जाते हैं, वो छटपटाते हैं। वो छटपटाहट के पीछे रीजन है कि रियली मे बी समबडी डोंट वांट टू लिव द वे द लाइफ इज गिविंग द वे। वो आपको जिस तरीके से लाइफ दे रही है, शायद आपको वैसे नहीं जीना है। तो वो लक्ष्य मिलना लाइफ का, दैट्स इम्पोर्टेंट। अदरवाइज तो ठीक है, सब कुछ हो रहा है। सो दिस इज हाउ दिस वर्ड वाज फ्रेम, धीरे 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 लाइफ में। Okay. So that is really, I get the sense, like a Laksh Jeevan Jagriti, because जब मैंने भी देखा था, I thought this is such a unique name for an organization like this. So I was very curious to know about it, and now I know it is this thing, no, वो बोलते हैं कि एक का जो unchangeable thing जो होती है certainty के पीछे, वो ये होती है कि nothing is certain and unchangeable. So that is the thing maybe that justifies your journey till now. And so it is said that it is not difficult to reach at the top, but maintaining that level, like once you reach the top, आपको वो जो
कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करनी होती है वो सक्सेस की, क्योंकि हर लोगों के पास, हर एक इंसान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती। सक्सेस होना इज इजी, बट सक्सेस उस फेम को, उस रेपुटेशन को मेंटेन करना, दैट इज द बिगेस्ट टास्क वी सी टुडे। एंड how do you manage to, like, with all that media presence of yours, how do you keep yourself in track, and how do you keep yourself motivated towards the cause you actually started your journey with? तो अंशिका, एक्चुअली ये फेम, ये टॉप पे आना, मुझे ये मेरी लाइफ में नहीं दिखता कि होता हुआ ऐसा, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ उनको, बच्चों को पढ़ना सिखाया है। अभी तो उनको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अभी सिर्फ कुछ हजार लोग ही मैं इम्पैक्ट कर पाया हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ जगहों पे ही पहुँच पाई है। अभी तो उन जगहों को की ग्रोथ हमें आगे आने वाले 10 साल, 5 साल में देखनी है। वो मिला तो, और फिर उसके बाद वो स्माइल मिली अगर, तो कुछ हमने किया है। अदरवाइज तो नहीं। मैं अभी सेटल नहीं हूँ इस चीज़ से कि सिर्फ 10,000 लोग काफ़ी नहीं है। जिस कंट्री में हम जी रहे हैं उसमें कई करोड़ की आबादी है। ये कुछ हजार तो कुछ भी नहीं है। और रही बात मीडिया प्रेजेंस की, मीडिया जैसे मिट्टी का रंग है, आप सब लोग का काम हमको हाईलाइट नहीं करना है। ऐसे कितने राहुल बन जाएं इसके बाद, वो देखना है। तो मुझे दिखता है कि मैं हर एक के साथ, जब जिस दिन मैं खड़ा नहीं रहूंगा तब तक वो अचीव नहीं किया है, तब तक कोई फायदा नहीं है मेरा। अभी चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमने उनको खाना दिया पर माचिस नहीं दी अभी हम उनको, वो भी देना है। अभी उनने उनको पढ़ाना शुरू किया, अभी उनके कॉलेज भी आएंगे, वहाँ पे भी सपोर्ट करना है। तो अभी बहुत बड़ी जर्नी है इस सब चीज़ों को सोचने की कि कैसे मेंटेन करना। अभी तो काम में लगे हुए हैं। एक वो वाली कैटेगरी होती है ना सर लोगों की, कि आप स्टार्ट, एक होते हैं कि कई के डर के मारे स्टार्ट ही नहीं करते, कई कई होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं बट पूरा नहीं कर पाते, और कई कई होते हैं जो कि, एक होता है रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, स्टार्ट किया है तो करके छोड़ेंगे। तो सर, यू सीम लाइक क्वाइट अ ड्रीमर, इट फील्स लाइक यू आर, इट अपीयर्स एज इफ यू आर चेजिंग समथिंग, एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट विद ऑल योर वर्क एंड एवरीथिंग। So, sir, where do you see yourself 5 years down the line? Like, you have achieved quite a few milestones till now. Even like impacting 1,000 lives with your work is a great thing to achieve right now. And as in, what's the way forward? Any visions or goals to be achieved? Please share some. तो मैं 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं शायद देखना चाहता हूँ जिस तरीके से 7 लोगों के लाइफ में राहुल आया, ऐसे सबको जिसको राहुल चाहिए वो उनके साथ में देखता हूँ अपने आप को, कि आई एम ऑल ओवर एवरीवेयर। एक वो वननेस हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो हम लोग वहाँ पहुँचे। क्योंकि मालूम है, अब समझ आ गया कि कैसे करना है। हारना नहीं है, और समझना भी नहीं है कि दुनिया क्या कहती है हमारे बारे में। हमें अपने सपने की तरफ देखना, वो तरीका समझ में आ गया हमें कि किस तरीके से जो थे और जो हो सकते हैं का सफ़र होता है। वो चल पड़े, हम देख देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि वो सबको पता चल जाना चाहिए। जब तक मैं हूँ तब तक सबको पता चल जाना चाहिए क्या होता है तरीका। तो मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी, वो हमने महाभारत देखी है ना, तो जी महाभारत में कर्ण के साथ जो हुआ, तो एक बार जब वो स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे तो स्वर्ग चाहिए, बिकॉज मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है लाइफ में। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे ये कहा कि आई गॉट दैट कि तेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, बट तूने उसके बाद क्या किया? क्या तूने ये लिया संकल्प कि तेरे साथ जो हो किसी के साथ नहीं हो, या तूने जिन्होंने तेरे साथ किया उसके साथ तूने रिवेंज गेम खेला? तो मुझे दिखता है कि जो लाइफ मैंने जी है वो कोई और नहीं जी है। जो हार्डशिप मैंने देखी है लाइफ में वो कोई और ना देखे। और जिस तरीके से मैं बाहर आया इस चीज़ से, हर कोई बाहर आ जाए जो भी इस ट्रैप में है, जो भी इस तरीके में है। तो आई सी दैट वे माई सेल्फ इन जस्ट फ्यू ईयर्स। Okay, that sounds really great, and we wish you all the best for your future endeavors. And we'll be like, we are honored to have you today with us. Like, your story is very inspiring for all of us. And so, if we say like,
after all these experiences, after so many hardships, after so many things which you have done in your life and which are yet to be achieved also. So if any, like if you have to sum up any life lesson, if you want to share for your audience, like after this journey, the main thing about life which you have learned, so what would that will be? Okay, so I'll coin in a one sentence. People see you and judge you by what you have done in your past, but you see yourself what you can do in the future. सारी लड़ाई इसी बात की रहती है. जो लोग बोलते हैं ना कि तूने अब तक नहीं किया तो अब क्या करेगा, कंसिडर कि वो एक फीडबैक है आपके लिए, वो क्रिटिसिज्म नहीं है. एंड सी कि अब तक क्यों नहीं हो पाया. एंड रियली दैट वर्ड विल नॉट स्टॉप यू एवर इफ यू रियली सी वे फॉरवर्ड व्हाट यू कैन डू इट. जो अगर आपके जो गैप है वो उसको आप कंप्लीट करें कि जो हुआ अब तक ऐसा क्यों हुआ, एंड टेक अ स्टैंड विद इट कि ये गैप्स में कंप्लीट करूंगा तो हो जाएगा. Okay. Yeah, that is a lesson I'm going to remember, like for sure, because my journey has just started. You said about your children being the IAS and IPS officer. Let me admit, we belong to this privileged class where we don't have to struggle for your studies. Yeah, we have some very lucky parents. We have all that wealth and everything. So I'm also preparing for IAS. So few years back down the line, when I see myself, I always used to like feel like, okay, this reservation and everything, this is very wrong, and why all of this, we are struggling hard, हम भी तो पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर हमको क्यों हर बार हम जनरल कोटा होना एक अभिशाप है, काइंड ऑफ लाइक फीलिंग था अंदर पे. But when I also joined this NGOs and I also worked for this some social causes, and जब इस पूरे मूवमेंट के साथ जब हम जुड़े, तब हमें भी रियलाइज हुआ कि शायद हम गलत थे. वो जो सोच थी, जो एक थी कि नहीं, वो शायद वो बदली, एंड अब वो समझ में आता है कि हाँ, देयर आर सम वेरी नीडी पीपल आउट देयर who needs our help and support, and we have people like you who are actually making a difference to their lives. So in the last, we have this know your speaker session, and let us know about this has been like your work and everything. But in personal life, like what are your hobbies? Like what do you do in your free time? Oh, I love traveling. मेरे को लोगों से मिलना पसंद है. मेरे को नई जगह देखना पसंद है. मैं सेटल नहीं रह सकता 2 महीने से ज़्यादा एक जगह पे. और मैं देखता हूँ कि हर एरिया में, हर जगह में ऐसा क्या है जो मैं दे सकता हूँ, तो मैं जाना जरूर पसंद करता हूँ जगहों पे. Okay, so the most amazing place you have been to, what will that be? I've been to Jaisalmer. One of the like different thing I have seen and observed. बहुत सारे हैं. मैं किसी को एक को बोल के दूसरे को डिमीन नहीं कर सकता. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. एवरी प्लेस Definitely. is beautiful. Incredible India. That's what we say. That's why the reason behind that. So, sir, any like any anecdote from your like journey? Like you are a traveler, so traveler have a lot of stories and everything. So, a anecdote which you remember from all your trips. हाँ, ऐसी बहुत सारी हैं. और उनमें से तो मेरी जर्नी जो मेरे को दिखी है वो है IIM अहमदाबाद की. तो क्या हुआ था Okay. कि हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं था, मेरे साथ 2 फ्रेंड्स थे. एंड वी वर हैपेंड लाइक ऐसा था कि हम मुंबई से दिल्ली आना था हमको, और ट्रेन से आना था. वो ट्रेन कैंसिल हो गई तो हम बस से आए. तो एक स्टॉप था बीच में अहमदाबाद का, तो मैं जिद पकड़ के बैठ गया, आई हैव टू गो देयर फॉर एनी हाउ, बिकॉज मैं वहाँ की तैयारी कर रहा था. उन्होंने कहा ठीक है. सो जब वो हम वहाँ पहुँचे तो मेरे दोनों फ्रेंड्स ने मेरा वेट बाहर किया कि तू जाके अंदर घूम के आ. और मैं अंदर गया और आई वॉज फीलिंग द वॉल्स, आई वॉज फीलिंग द एम्बियंस, आई वॉज, मैंने मिट्टी पे बैठा, उसकी मैंने हाथ से छुआ. एंड यहाँ आना है, ये कॉल आ रही थी बार बार. तो जब मैं बाहर गया तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा हो गया. मैंने कहा "हाँ, क्या है क्या इसमें, सिर्फ दीवारें ही तो हैं." तो मुझे वो डिफरेंस दिखा कि पैशन जिसके अंदर है उसको दीवारों में भी कुछ दिखता है, और जो दूसरी दुनिया जी रहे होते हैं
उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैशन कम है, या इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दुनिया कम है। वो दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं जिसमें लोग खुश हैं, वो ऐसे ही जीना चाहते हैं हम सब। So this was one of the experience I can never forget. Okay, that was great. So, sir, your favorite book, like, if you have to name one, so what will that be? Alchemist. Okay, The Alchemist. I've read that one. It is a fabulous book, like It is. a must read for everyone, I would suggest. Yeah. Yeah. And your role model, like during this entire journey of yours, who you consider as your role model for the inspiration and motivation? So my team, actually, जो 7 लोग मेरे साथ हैं, they are incredible people. I would name them Sumaya, Minakshi, Gagan, Preeti, Rinju, Kavita. They all are amazing. ये मेरे को जिंदा रखते हैं, like incredible. शुरुआत में चढ़कर बोर्ड लगाना, खंबे के ऊपर चढ़कर बोर्ड लगाना, झाड़ू लगाने से लेकर ट्रैवल करना, आउटरीच करना, जगह जगह ऐसी जगह जाना जहाँ पे मैं काम चाहता हूँ कि हाउ कम यू जस्ट कम हियर लाइक दैट। तो दे हैव बीन माय रोल मॉडल ऑलवेज। ओके, एक्चुअली वो जो टीम का जो पावर होता है, सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक होता है कि अभी मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ टीम का। विद मिट्टी के रंग ओनली, देयर इज फॉरगेट माय, देयर वाज वर्क आई हैड टू डू एंड आई वाज आउट ऑफ टाउन, देयर वाज सम इमरजेंसी एंड आई फॉरगॉट इट टू डू, but my team quietly managed it to pull it off without me only, and they didn't even say, or they didn't even complain about it ki nahi, why didn't you do your work. That's the comfortable you get when you are with your team. You feel like a unit, and वो बोलते हैं ना, एक उंगली से ज्यादा पूरी मुट्ठी में जो दम होता है. So that is what I also feel. So, sir, I ran out of questions right now, and thank you so much. It was like great listening to you. Your story is really inspiring, and it reaches a million people, and you're inspiring so many people out there. And personally, I feel you are an inspiration to me as well. So, I would like to thank you for that. थैंक यू अंशिका, एंड थैंक यू मिट्टी के रंग अगेन, एंड से माय हाय टू अमित। Yeah, sure, I will. And I would like to thank my audience too for all the love and support you guys give to us. And we'll be back with another episode of Voice the Noise. Till then, let's be the noise. Thank you so much, everyone.